अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome to the introductory session of our basic spoken English module. And today, in the initial few 15 to 20 minutes, I'll be giving you an explanation about what is ARC, what is the course actually, what is the course actually about the basic spoken English program. And then we'll move forward with our first lesson as well today. Okay. So before we begin, let's just have a quick overview about what is Arc Institute. Okay, so I've given the name of this institute as Arc Institute because this RK, what does it stand for? It stands for righteous knowledge. So, jo, in pursuit of righteous knowledge. So, I want to be in a pursuit of righteous knowledge. That's why I've named this institute as RK Institute. Although it is a pretty common name, but R stands for righteous, K stands for knowledge. तो सही knowledge के पीछे हमें जाना चाहिए। ठीक है, नॉलेज तो कई तरह के हैं दुनिया में, बट व्हाट वी शुड प्रोसीड इज राइटियस नॉलेज। सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द नेम of the institute as RK Institute. Okay. So the topics that I'll be covering in this first 15 to 20 minutes. Acha, before I proceed with this as well, let me just give you a brief introduction about myself. My name is Mohammad Tausif. I am from Pune. Okay, so I have done my bachelor's in electronics and telecommunication engineering from MIT College of Engineering in Pune, and so I have done my engineering from University of Pune, and then I proceeded to do my master's in electrical engineering from Pennsylvania State University in USA. So after completing my master's, I decided that I don't want to be in USA anymore, so that's why I returned back to India. And then I worked in few education technology companies, but then I decided no, means I was in Bangalore as well, but then I decided no, I have to do this own startup of my own. So yeah, so that's just a brief background about myself, and I have started this RK Institute in pursuit of righteous knowledge. So in this particular in these first 15 to 20 minutes, I'll be covering these topics. So why have I chosen to teach languages? What is the importance of languages? What is the concept on which I have started this RK Institute? And then I'll be looking at some language skill overview, and what are the benefits of learning English? Okay, and what is the methodology and what is the course structure and the pricing? Okay, so at RK Institute, I have chosen two languages, that is English and Arabic. So I'll be discussing what is the importance of these two languages and why I have chosen these two languages. So first of all, before even proceeding to languages, what is the importance of learning a language? तो एक language अगर सीखते हैं तो एक Arab proverb एक कहावत है कि learn a language and you will avoid war. तो अगर आप किसी और का language जानते हैं तो you can convey your thoughts to them, so that will eventually help you avoid a war. तो इसमें बहुत ज़्यादा deep meaning है। Anyway, so according to ethnologue, ठीक है, तो ये top 10 languages of the world है, और उसमें से भी top 6 में अरबिक और इंग्लिश आ जाता है। तो these are very important languages, and that's why I've chosen these two languages for RK Institute. Okay, so the concept on which I have started this RK Institute, I have started on the concept of Majma'ul Bahrain. Majma'ul Bahrain मतलब क्या? So in Suratul Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala says to Hazrat Musa alayhi salam that you go to Hazrat Khidr alayhi salam. Okay, so over there, Hazrat Musa alayhi salam goes, and Allah tells that you will find Khidr alayhi salam at the point of Majma'ul Bahrain. That is where the two. So Mufassirin have given the explanation that what is this Bahrain? Bahrain मतलब सी, मजमा यानी कि मीटिंग पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली यू विल फाइंड खिद्र वेयर द टू ओशंस ऑफ नॉलेज मीट। तो ये दो ओशन ऑफ नॉलेज क्या है? ठीक है, तो एक ओशन ऑफ नॉलेज जो है वो एक्सटर्नल विजन के जरिए जो अक्वायर किया जाता है, यानी कि जो हम साइंटिफिक नॉलेज,
ऑब्जर्वेशन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, जो हम साइंटिफिक मेथोडोलॉजी अप्लाई करके जो नॉलेज एक्वायर करते हैं वो एक्सटर्नल विजन कहेंगे उसको, ठीक है, जो हमें आजू बाजू की दुनिया को देख देख के जो नॉलेज मिलता है उसे कहेंगे एक्सटर्नल नॉलेज। और दूसरा है इंटरनल इंट्यूटिव इंसाइट, यानी कि क्या, दिल से मतलब इसको कहेंगे बसीरत, अरबिक में इसको बसीरत कहते हैं, कि दिल से देखने की क्षमता कि अरे क्या हो क्या रहा है करके, ठीक है। सो दैट इंटरनल इंट्यूटिव इंसाइट। सो ये दो तरह के, दो ओशंस ऑफ नॉलेज है, ठीक है, इसलिए मैंने उसको सर्कल किया है। तो दो ओशंस ऑफ नॉलेज है, ठीक है। तो आज के दौर में, ठीक है, तो ओशन ऑफ नॉलेज एक्सटर्नली एक्वायर्ड, मतलब जो हमारा साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है ये सब चीजों से एक्वायर करने के लिए जो नॉलेज है, उसके लिए जो मेजर लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई हैव चोजन इंग्लिश, विच विल केटर टू एक्सटर्नल नॉलेज। और इंटरनली रिसीव नॉलेज, यानी कि हमारे दिल को पाक करने वाला नॉलेज, उसके लिए वी हैव टू नो द कुरान। और कुरान को समझने के लिए, हाँ ठीक है, पढ़ना अलग बात है, बट उसके अलावा हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ भी बढ़ना चाहिए, दैट इज समझना, दैट इज अंडरस्टैंडिंग अरबिक। सो उसके लिए इफ यू वांट टू क्लेंज आवर हार्ट, वी हैव टू नो द कुरान एंड व्हाट आर द वेरियस अहकामात इन द कुरान। सो दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस अरबिक एज। तो ये दो लैंग्वेजेस जो है हमें, ये दो ओशंस ऑफ नॉलेज जो है, ठीक है, एक्सटर्नली एक्वायर्ड नॉलेज एंड इंटरनल इंट्यूटिव इंसाइट के जरिए जो नॉलेज मिल रहा है, इन दोनों नॉलेज को मिला देगा, एंड देन आवर एजुकेशन विल बी मतलब ट्रूली कंप्लीट, ठीक है। तो आज के दौर में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल विजन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है, कैसे साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के जरिए हमें आगे बढ़ेंगे वगैरह वगैरह। सो व्हेन वी हैव बोथ, इसलिए इंजीनियर्स वगैरह तो बन रहे हैं, बट इंजीनियर्स डॉक्टर्स वगैरह बन रहे हैं, बट दिल पाक नहीं है, ठीक है। सो वी हैव टू हैव बोथ दीज नॉलेजेस, ठीक है, 50, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, दोनों भी। सिर्फ इंटरनल रह के चलेगा नहीं, सिर्फ एसेटिक बन के नहीं चलेगा, ठीक है। तो वी हैव टू हैव बोथ दीज नॉलेजेस, सो दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस इंग्लिश एंड अरबिक फॉर आर के इंस्टीट्यूट। ओके। सो किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए, ठीक है, तो इसको चार डायमेंशंस होते हैं, चार डायमेंशंस के जरिए किसी भी लैंग्वेज को हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। और ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज के लिए, ओके। सो व्हाट आर, नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। तो हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए? तो इंग्लिश सीखने से मतलब जैसे कि मैंने एक तो ऑलरेडी बता दिया कि इट गिव्स अस, इट ओपन्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सटर्नल नॉलेज, ठीक है। उसके अलावा भी वाइडर करियर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। और जो भी, अगर आप स्टूडेंट है तो आप आपको अगर इंग्लिश आता है, ठीक है, तो आप बाकी साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी पढ़ना चाहते हैं, तो इट विल बी इजी फॉर यू, यू कैन अंडरस्टैंड इट ऑन योर ओन एज वेल, वंस यू हैव द कमांड ओवर इंग्लिश, ठीक है। फिर ग्लोबल इंफॉर्मेशन, जो भी आज के दौर में ज्यादातर इंफॉर्मेशन मिलता है ऑनलाइन, वो भी इंग्लिश में है, ठीक है। कम्युनिकेशन, तो दुनिया में कहीं पे भी जा रहे हैं तो इंग्लिश आपके लिए डेफिनेटली इट विल बी useful, and whatever the current world scenario and understanding of gaining क्योंकि मेजर जो न्यूज आउटलेट्स है वो भी इंग्लिश में है, ओके। सो बेसिकली इंग्लिश हेल्प्स यू गेन एन ऑलराउंड डेवलपमेंट, ठीक है, ओके। अच्छा, इंग्लिश वैसे तो एजुकेशन में भी है, ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम, हम जो हमारा बेसिक मतलब स्कूलिंग करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डॉक्टर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम इज इन इंग्लिश। बिजनेस करना है, इंग्लिश जरूरत है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में है आप, इंग्लिश आना जरूरी है। ट्रैवल कर रहे हैं, इंग्लिश आना जरूरी है, ठीक है। सो इंग्लिश इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ओके। तो अब मैं हमारे मेन प्रॉब्लम की तरफ आ रहा हूँ। तो बेसिक स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश क्यों, ठीक है। तो क्या क्या डिफिकल्टीज हम फेस करते हैं वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बात करते वक्त हमें क्या क्या अलग अलग डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है, ठीक है। सो देर आर प्रोनाउंसिएशन में, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन में वेरिएशंस होता है, ठीक है। रीजनल एक्सेंट्स अलग अलग होते हैं, प्रोनाउंसिएशन गलत होने की वजह से आपको मतलब बात करने में मुश्किल होती होगी, ठीक है। ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सही ग्रामर, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बनाना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, ठीक है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, ग्रामर भी सही होना चाहिए।
उसके अलावा नेक्स्ट वोकेबलरी, वोकेबलरी ना होने की वजह से सही वर्ड, वो करेक्ट यूसेज ऑफ द वर्ड, वर्ड को कहाँ पे सही जगह से इस्तेमाल करना, और वो बराबर तरीके से आपको रिमेम्बर करने आना, ठीक है, आपको वो उस वक्त पे बात करने आना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर इंटोनेशन एंड स्ट्रेस की, क्वेश्चन बोल रहे हैं तो कैसे वो क्वेश्चन का इंटोनेशन होना चाहिए ताकि वो सामने वाले को समझ में आ जाए कि अरे हाँ, ही इज एन आस्किंग एन क्वेश्चन ओवर, व्हेन टू गिव स्ट्रेस, ठीक है, ऑन विच वर्ड्स टू गिव स्ट्रेस। इस इंटोनेशन और स्ट्रेस की वजह से आप जो कन्वे मीनिंग कर रहे हैं, मीनिंग जो भी कन्वे कर रहे हैं वो सही तरीके से आप कर पाएंगे, ठीक है, विद करेक्ट एम्फोसिस। एंड फ्लुएंसी एंड नेचुरलनेस, ठीक है। तो ये फ्लुएंसी और नेचुरलनेस कब आता है? जब एक इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है। तो एक इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट नहीं होने की वजह से भी हमारे अंदर ये फ्लुएंसी और जो नेचुरली जो लैंग्वेज फ्लो करना चाहिए वो नहीं आ पाता है, ठीक है। तो ये जो डिफिकल्टीज देखा हमने अभी, ठीक है, इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाउ टू इम्प्रूव द स्पीकिंग फ्लुएंसी? तो व्हाट इज द मेथोडोलॉजी दैट आई टेक ड्यूरिंग दिस कोर्स? सो आई टेक दिस मेथोडोलॉजी दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रामर, ठीक है, वी आर लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज। फर्स्ट ये चीज समझना जरूरी है कि हम सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए हमें उसका ग्रामर, देखिए, मदर टंग जो होता है वो हम बहुत आसानी से सीखते हैं। बच्चा जो है, ही हैज दिस, मतलब वो साल 1.5 साल तक जो है वो सुनते रहता है, बोलता नहीं है, ठीक है। सो ही और शी इज जस्ट लिसनिंग द वर्ड्स, ठीक है, दे आर नॉट, दे डोंट हैव एनी प्रेशर टू स्पीक, ठीक है। फिर उसके बाद एक एक 1.5 साल के बाद वो बोलने लगता है। तो फिर उसके बाद वो पढ़ने लगता है और फिर आखिर में लिखने लगता है। तो दिस इज द वे हाउ स्मॉल चाइल्ड acquires द लैंग्वेज, कि पहले सुनता है, लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड देन राइटिंग, ठीक है। बट सेकेंड लैंग्वेज के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ा उसका ग्रामर भी सीखना पड़ेगा। तो इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज वी हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रामर एज वेल। तो कंसेप्ट अगर सही से समझ में आ जाएगा तो यू कैन इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली improve योर स्पीकिंग फ्लुएंसी, ओके। देन नेक्स्ट, वोकेबलरी, तो नए वर्ड्स को कंटेक्स्ट में सीखना। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका, देखिए, अब मैं बार बार कहते रहता हूँ कि ये जो वोकेबलरी है ये ब्रिक्स की तरह है, ठीक है, वर्ड्स है, ये ब्रिक्स की तरह है, और ग्रामर जो है वो सीमेंट का काम करता है, ठीक है। तो ये जब दोनों के दोनों मिलेंगे, ग्रामर भी मिलेगा, वोकेबलरी भी मिलेगा, तब जाके आप दीवार खड़ी कर पाएंगे, तब जाके आप स्पीक फ्लुएंटली बोल पाएंगे। तो आपके पास वोकेबलरी भी होना जरूरी है, ग्रामर भी होना जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद लेट्स, देर आर वेरियस डायलॉग्स, ठीक है। तो हम किस सिचुएशन में किस तरह बात करें, ठीक है, व्हाट टू टॉक इन वेरियस सिचुएशंस, दैट वी कैन, वो भी हमें पता नहीं होता है, व्हाट टू स्पीक, अरे ये सिचुएशन आ जाएगा तो क्या बात करेंगे करके। तो उसके लिए आई हैव इंट्रोड्यूस मेनी डायलॉग्स इन दिस एंटायर कोर्स, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट, फाइनली, इस ये जो भी आपने नॉलेज सीखा है, जो भी ग्रामर के जरिए, वोकेबलरी के जरिए, डायलॉग के जरिए, ये आपको अप्लाई करना है, ठीक है। सो दीज आर फर्स्ट 5 डेमो लेक्चर्स। सो इसमें बहुत सारे लोग आते, मतलब दे विल बी कमिंग एंड दे विल बी गोइंग एज वेल। But when we'll finalize the batch from next Sunday onwards, तो उसमें मैं क्या करूंगा कि I'll be forming two pairs of each, ठीक है। तो pairs बनाऊंगा मैं, और उसमें क्या करना है आपको, कि जो कुछ भी मैं ग्रामर कंसेप्ट, वोकेबलरी, डायलॉग जो भी सिखाता हूँ वो आपको एक दूसरे को सिखाना है, ठीक है। सो यू विल हैव टू, मतलब अदर देन द क्लास टाइम ऑब्वियसली, मतलब we'll be exchanging the numbers and so on. Anyway, I'll be talking about that detail in whenever we'll do that. So teach and speak, so आपको सिखाना भी है, ठीक है, और खुद बोलना भी है। ये क्या हो जाएगा, डिस्कस करने की वजह से आप जो भी नॉलेज सीखे हैं उसको अप्लाई कर पाएंगे, और जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज हो, ठीक है। सो दिस इज द मेथड दैट आई टेक ड्यूरिंग दिस एंटायर कोर्स, ओके। Okay, so there are two modules basically for, we are in the basic spoken English module right now, ठीक है। तो basic spoken English module का duration जो है, ठीक है, वैसे advanced भी है, but right now we are in the basic spoken English। तो duration जो है इसका 40 hours का है, 40 घंटा, ठीक है, 2 महीने के लिए। तो 5 days a week लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है। इसमें फोकस जो है वो
बेसिक एंड इंटरमीडिएट ग्रामर, फिर वोकेबलरी एज वेल एज स्पीकिंग स्किल्स। इसका फीस वैसे 4,000 है। एंड एडवांस्ड इज फॉर 70 आवर्स, ड्यूरेशन इज 70 आवर्स एंड इट गोज फॉर 3.5 months। उसके ऊपर एडवांस ग्रामर, एडवांस वोकेबलरी, स्पीकिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर भी फोकस किया जाता है, ठीक है। तो फीस उसका 7,000 है। So now the basic module fees is वैसे तो 4,000, but I'll be offering 20% off, and the effective course fees will be 3,200 only, ठीक है। आप 2 installments में पे कर सकते हैं, 1,600, 1,600, ठीक है। ओके, फाइन। तो थोड़ा सा कोर्स के बारे में और थोड़ा डिटेल, बेसिक स्पोकन इंग्लिश के बारे में, ठीक है। फिर से 40 घंटे का ड्यूरेशन है, 40 घंटे के लेक्चर्स है, 40 लेक्चर्स है, ठीक है। और 2 महीने के लिए ये पूरा कोर्स चलेगा। इसका टाइमिंग है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, रोज सुबह 10 से 11, ठीक है। तो दिस इज द टाइमिंग इन विच आई विल बी कंडक्टिंग द लेक्चर्स। अगर आप में से किसी को भी टाइमिंग का कुछ इशू है तो मुझसे बाद में डिस्कस कर सकते हैं। एंड देन व्हेन विल फाइनलाइज द फाइनल बैच, उसमें अगर आप कहते हैं नहीं 9:30 से 10:30 कीजिए, ठीक है चलेगा। 10:30 से 11:30 कीजिए, ओके चलेगा, ठीक है। बट एवरीवन हैव टू अग्री कि बाबा ये टाइमिंग सही रहेगा करके। नहीं तो आइडियली यही टाइम, मतलब मुझे लगता है कि दैट विल बी फाइन, 10 to 11। टीचिंग मोड इसी तरह ऑनलाइन जूम के जरिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में भी बात करूंगा, हिंदी में भी बात करूंगा, सो दैट आपको कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में भी आ जाए, ठीक है। आपको बेसिक इंग्लिश थोड़ा बहुत आना चाहिए, एकदम भी बेसिक नहीं है ये, एकदम एबीसीडी भी नहीं सिखा रहा हूँ मैं, बट थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको आना चाहिए, ठीक है। मिनिमम अटेंडेंस 40 आवर्स में से 32 आवर्स तो कम से कम करना ही करना है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है इसको देखने के लिए 2 टेस्ट होंगे। तो एक 18 लेक्चर्स के बाद एक टेस्ट होगा, एंड देन फाइनल 40 लेक्चर्स के बाद एक और टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए मिनिमम मार्क्स जो है, ठीक है, सर्टिफिकेट भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मिनिमम मार्क्स आपको 80% मिलाना है आउट ऑफ दिस, मतलब जो भी टेस्ट में लूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप कुछ लेक्चर्स मिस करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि मैं ये लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर्स। तो ये लेक्चर रिकॉर्डिंग, अगर आप कुछ लेक्चर्स मिस करते हैं तो लेक्चर रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल टू यू वाया गूगल क्लासरूम, ठीक है। तो मैं मतलब ये लेक्चर खत्म होने के बाद मैं एक गूगल क्लासरूम बनाऊंगा, एंड आई विल बी अपलोडिंग द लिंक टू ज्वाइन दैट गूगल क्लासरूम इन द 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स विच आई हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको एवरीडे जो भी अपडेट्स रहेंगे रिगार्डिंग दिस बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स वो आपको मिलेगा, ठीक है। एक और बार, सिलेबस फॉर बेसिक मॉड्यूल क्या है, ग्रामर में क्या क्या सिखाया जाएगा, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, टेंसेस, ठीक है, बेसिक टेंसेस, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एडवर्ब्स, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस को फॉर्म करना है, ठीक है। और फिर वोकेबलरी में रोज देता रहूंगा और आपको वो याद भी करना है, ठीक है। एंड देन स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर भी रीडिंग, मतलब क्या, आप जो भी डायलॉग्स दिए रहेंगे वो आपको ही पढ़ना होगा। मैं मतलब बताऊंगा कैसे करना है इसको, ठीक है। एंड देन टेस्ट होंगे, ठीक है। ओके। हमारे इस पूरे कोर्स के लिए एक रेफरेंस बुक होगा, ठीक है। वो रेफरेंस बुक है एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर इन यूज। इसका मैं पीडीएफ जो है वो गूगल क्लासरूम में जरूर अपलोड अपडेट करूंगा। ये बाय रेमंड मर्फी करके राइटर है। तो इसमें से बेसिकली व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी गिविंग यू होमवर्क फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक। तो मेरे पीडीएफ्स में, मतलब मैं जो भी कंसेप्ट है वो मैं मेरे पीडीएफ्स के जरिए समझाऊंगा। और आपको क्या करना है, ये एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बुक बहुत ही जबरदस्त बुक है। इसमें एक साइड को जो है, मतलब 2 ही पेजेस का एक चैप्टर होता है, ठीक है। तो एक साइड में थियरी दिया रहता है और दूसरे साइड में एक्सरसाइजेस दिया रहता है। तो टू इन ऑर्डर टू मेक योर ग्रामर स्ट्रांग, ठीक है, एक बार देखिए, हम अगर ग्रामर सीखते हैं, वोकेबलरी सीखते हैं, तो हमारा क्या बेनिफिट क्या मिलता है, ठीक है। देखिए, जड़ अगर स्ट्रांग रहेगा, रूट अगर स्ट्रांग रहेगा, तो उसके ऊपर आप, मतलब पेड़ कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज वी आर प्लांटिंग द रूट्स। आपका अगर रूट, अगर जड़ स्ट्रांग रह जाएगा, ठीक है, तो उसको आप उसके बाद फिर उसको कितना पानी देते हैं उसके बाद में, ठीक है। हाँ, अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट, मैं पानी से मुझे यह बात याद आ गया कि सिर्फ ये लेक्चर कोर्सेज करके चले नहीं, 40 घंटे का लेक्चर हो गया, अरे सर मुझे बोलने नहीं आ रहा है, ऐसे हो रहा है। उसके बाद भी आपको कंटिन्यू रखना है, रीडिंग कंटिन्यू रखना है, स्पीकिंग कंटिन्यू रखना है, बोलना कंटिन्यू रखना है आपको, ठीक है। ओनली देन यू विल हैव द ट्रू बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। ओके। ओके। सो मेरी तरफ से इनपुट ये रहेगा कि 5 आवर्स पर वीक लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है। बट जब तक आप खुद आउटपुट नहीं देते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे लेक्चर्स के दौरान सब कुछ समझ में भी आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा और सब कुछ समझ में आ रहा है।
but until and unless you give the output by practicing, ठीक है, तो आइडियली प्रैक्टिस ये करना चाहिए कि कम से कम 10 घंटा पर वीक, मतलब दिन में समझ लीजिए 1.5 घंटे का प्रैक्टिस, ठीक है, 1 to 1.5 hours ऑफ प्रैक्टिस एवरी डे। सो ये आपकी तरफ से भी आउटपुट आना जरूरी है, ठीक है। फाइन, सो सीखेंगे तो ये लर्निंग इज अ ट्रेजर दैट विल फॉलो इट्स ओनर एवरीवेयर, ये एक चाइनीज कहावत है। तो सीखना ये हमें हमेशा, वी हैव टू ऑलवेज बी इन परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड दैट टू राइटियस नॉलेज। ओके, सो माय नेम इज दिस, माय मोहम्मद तौसीफ, ठीक है, मेरा ये मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है। प्लीज राइट डाउन माय मोबाइल नंबर। अगर आप कहीं और से आ रहे हैं तो प्लीज मुझे, मतलब इफ यू हैव नॉट येट बीन एडेड टू द व्हाट्सएप ग्रुप, तो प्लीज मुझे जरूर मैसेज कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। नाउ विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद आवर लेसन फॉर टुडे, ठीक है। सो ओके, सो टुडे we'll be doing the lesson number 1। थोड़ा सा लाइट ही टॉपिक है, since this is the first lecture। So we'll be learning about the sentence structure of SVC, that is subject verb complement। subject pronouns के बारे में देखेंगे क्या होता है, और जो सबसे बेसिक वर्ब है इंग्लिश का वो है बी, उसके फॉर्म्स के बारे में देखेंगे, प्रेजेंट टेंस के फॉर्म्स के बारे में देखेंगे, और एक छोटा सा कॉन्वर्जेशन देखेंगे, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। सो लेट्स लुक एट व्हाट आर, अच्छा उससे पहले भी इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं? 26 अल्फाबेट्स है, वॉवेल्स, ठीक है, AEIOU, यू नो दैट, एंड कॉन्सोनेंट्स आर अदर देन दैट। वॉवेल्स मतलब क्या होता है कि मतलब बिना किसी रुकावट के, ठीक है, हमारा जो वोकल कॉर्ड है, हमारा वोकल ट्रैक जो है, बिना किसी रुकावट के जब ये वर्ड्स आते हैं, AEIOU, तो आप अगर इनको प्रोनाउंस करके देखेंगे तो क्या हो रहा है कि वोकल ट्रैक्ट में कुछ भी आप रोक नहीं रहे हैं, ठीक है। पर आप अगर बी कहेंगे तो आप लिप्स को जोड़ रहे हैं, बी, सी, ठीक है, टंग को आप टीथ को जोड़ रहे हैं, ठीक है। सो इस वजह से ये बाकी सब जो है ये कॉन्सोनेंट्स है, and AEIOU are the vowels in English। Okay, so that's the difference between vowels and consonants। Anyway, so let's start with sentences, ठीक है। तो कुछ बेसिक सेंटेंसेस देखेंगे क्या सीखने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम will be going into the grammar part as well। Okay, so let's look at the sentences। So I am a teacher, मैं एक टीचर हूँ, I am a teacher, ठीक है, मैं एक टीचर हूँ। Sally and I are टीचर्स। ये एम कहाँ से आ रहा है, आर कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग द लेक्चर नाउ, सो आई होप प्लीज एवरीवन पे अटेंशन। ओके, वी आर टीचर, हम सब टीचर्स हैं, ठीक है, वी आर टीचर्स। यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है। और अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलना है तो क्या कहेंगे? यू आर स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लूरल, यू आर स्टूडेंट्स। जॉन इज अ कुक, इज कह रहे हैं, जॉन इज अ कुक, जॉन एक कुक है। ही इज अ कुक, ठीक है, वो एक कुक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। आई विल बी टेलिंग अबाउट दिस थर्ड पर्सन क्या बोल रहा हूँ वगैरह में। सुजन इज अ डॉक्टर, ठीक है, सुजन एक डॉक्टर है। शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, फीमेल शी, ठीक है। सुजन एंड जॉन आर डॉक्टर्स, ठीक है, ये दोनों डॉक्टर्स हैं। दे आर डॉक्टर्स, वो सब डॉक्टर्स हैं, ठीक है। सो दिस इज these are some sentences। now let's go into the grammar। तो sentences तुम बस आपको ये बताने के लिए कि किस तरह जो भी हम ग्रामर टॉपिक सीखने वाले हैं उसका एप्लीकेशन सेंटेंसेस में कैसे होता है उसको बताने के लिए मैं यहाँ पे सेंटेंस लेके आता हूँ, ठीक है। तो आई एम अ टीचर, ये सबसे बहुत ही बेसिक सेंटेंस पैटर्न है इंग्लिश में, ठीक है। इसमें क्या क्या है, ठीक है, तीन चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट है, ठीक है, आई, ठीक है, आई जो है ये सब्जेक्ट है। फिर एम, ठीक है, ये एम क्या है, हमारा वर्ब है, ठीक है। और अ टीचर, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ठीक है। ओके, तो हम इस लेसन में जो है सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट
प्रोनाउंस के ऊपर और वर्ब बी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाले इस पर्टिकुलर लेसन में। ठीक है, ओके, लेट्स लुक एट फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है करके। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है वो सबसे पहला हिस्सा होता है किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर का। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है वो किसी भी सेंटेंस का फोकस होता है, और जनरली ये या तो एक नाउन होता है या फिर पर्सनल सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे कि नाउन यानी कि क्या, किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, इसको हम नाउन कहेंगे। ठीक है, तो नाउन के अलावा हम पर्सनल सब्जेक्ट प्रोनाउंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस, देखिए सब्जेक्ट प्रोनाउंस यानी कि सब्जेक्ट के जगह पे इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोनाउंस। व्हाट आर द सब्जेक्ट प्रोनाउंस? तो अब हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस को देखेंगे। ठीक है, दीज आर द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि क्या, जो बात कर रहा है। ठीक है, उसको हम फर्स्ट पर्सन कहेंगे। जो बात कर रहा है उसको फर्स्ट पर्सन कहेंगे। तो फर्स्ट पर्सन पर्सनल सब्जेक्ट, पर्सनल यानी कि खुद के लिए। ठीक है, तो पर्सनल सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या क्या है? आई, इंग्लिश में दो ही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस की बात कर रहा हूं मैं। आई यानी कि मैं। ठीक है, और वी यानी कि हम। ठीक है, तो आई, वी, ये प्लूरल ऑफ आई है। ठीक है, वी मतलब हम सब। ठीक है, और ये जैसे कि हमने सेंटेंसेस में देखा था सैली एंड आई। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर सकता है ये वी। तो सैली एंड आई बोलने की जगह हम क्या कह सकते हैं? वी आर टीचर्स। ठीक है, वी आर टीचर्स ऐसा कह सकते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन यानी कि वो इंसान जिससे आप बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं। ठीक है, अब सेकेंड पर्सन आप सब हो गए कि आप सब सुन रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड पर्सन पर्सनल सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? इंग्लिश में सिर्फ एक है, यू। ये सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सिंगुलर यानी के लिए एक, और दो या दो से ज्यादा, इसके लिए हम प्लूरल कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो दोनों के लिए, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी आप यू कहेंगे। ठीक है, अब थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी कि क्या, जो वहां पे मौजूद नहीं है। आप और मैं बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, बट हम किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं, तो वो हो गया क्या हमारा? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन पर्सनल सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या क्या है इंग्लिश में? ठीक है, तो मेल के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस है, ध्यान में रखें सब्जेक्ट प्रोनाउंस है। इसके बाद मतलब कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम ऑब्जेक्ट के प्रोनाउंस के बारे में भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए सब्जेक्ट प्रोनाउंस, तो सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस। तो ही हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? मेल के लिए, मेल पर्सन के लिए। शी किसके लिए? फीमेल के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एंड इट, ये ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो ये इट हम ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों जो है ये सिंगुलर हो गए। ठीक है, एक के लिए इस्तेमाल करेंगे, बट प्लूरल के लिए हम दे इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल, ही शी इट का प्लूरल क्या है? दे। ठीक है, और ये मतलब थर्ड पर्सन की जब हम बात कर रहे हैं तब हम दे का इस्तेमाल करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल। ठीक है, तो क्या क्या सब्जेक्ट प्रोनाउंस है? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब बी के बारे में। ठीक है, अच्छा, ये सीखने से हम जो है वो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब, जैसे कि आप नाम में देख रहे हैं, लिंक करने वाला वर्ब। ठीक है, क्या लिंक कर रहा है? सब्जेक्ट को, और उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देने वाले हैं उसको लिंक करने वाले वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक वाला लिंकिंग वर्ब इंग्लिश में है वो है बी। ठीक है, तो सबसे ये बहुत ही मतलब आसान है। ठीक है, तो बी में जो है क्या करना, बेसिकली तीन, इसको कहेंगे, मैं कहूंगा तीन कपड़े हैं बी के। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस यानी कि क्या, वर्तमान काल। ठीक है, जो अभी हम बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं तो बी के तीन कपड़े हैं। ठीक है,
एम, आर और इज, ये बी के फॉर्म्स है, समझ लीजिए फॉर्म्स। ठीक है, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ बी, एम, आर, इज। और ये तीन अलग अलग फॉर्म्स क्यों हैं? क्योंकि लिए ये तीनों को अग्री करना पड़ता है सब्जेक्ट के साथ। तो जो कुछ भी हमने सब्जेक्ट प्रोनाउंस अभी अभी सीखे हैं, ठीक है, उसके साथ अग्री करने के लिए ये सब हमें फॉर्म्स ऑफ बी चाहिए, यानी कि एम, आर और इज। देखिए, अब आई के साथ, आई हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन देखा है, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन है, सिंगुलर एक। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया? एम इस्तेमाल किया। आई के बाद आर नहीं कह रहे, आई इज अ टीचर नहीं कह रहे, आई आर अ टीचर नहीं कह रहे, हम आई एम अ टीचर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा लिंकिंग वर्ब है, ये टू बी का फॉर्म है एम, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। अब यू हमने देखा तुम सेकंड पर्सन है, ठीक है, इट इज सेकंड पर्सन, एंड वी आर यूजिंग व्हाट लिंकिंग वर्ब ओवर हियर, टू बी का ही फॉर्म है, बट आर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तुम एक स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, आर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यू के साथ आर इस्तेमाल होता है। ठीक है, वी, हम सब टीचर्स हैं, तो वी आर टीचर्स। तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन जो हमने सीखा है, उसके साथ अग्री करने के लिए ये आर होना चाहिए। ठीक है, वी आर टीचर्स, हम सब टीचर्स हैं। दे आर स्टूडेंट्स, अब थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं हम, दे, वो, ठीक है, वो सब स्टूडेंट्स हैं, थर्ड पर्सन। ठीक है, आप और मैं बात कर रहे हैं, और हम तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं, दे आर स्टूडेंट्स। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन, और दे के साथ क्या इस्तेमाल किया गया है? आर इस्तेमाल किया है। ठीक है, बट जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरफ आते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरफ आते हैं, यानी कि ही शी की तरफ आते हैं, ठीक है, तो हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? इज इस्तेमाल कर रहे हैं, ही शी इज अ टीचर। ठीक है, इट इज अ बुक, इट के साथ हम क्या कह रहे हैं? इज कह रहे हैं, इट इज अ बुक। ठीक है, तो आई एम अ टीचर, यू आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीन में आर इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे एम इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे ये दो थर्ड पर्सन सिंगुलर में इज इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह एम, आर और इज को हम हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, कि हमारा ये जो कोर्स है इंशाल्लाह ताला विल बी कंप्लीटिंग इट बिफोर रमजान। ठीक है ना, तो रमजान मतलब आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि रमजान के पहले खत्म हो गया, नहीं, तो 2 मंथ्स में इंशाल्लाह ताला, रमजान के पहले इंशाल्लाह ताला विल बी कंप्लीटिंग द कोर्स। ओके, फाइन। ओके, तो नेक्स्ट लेट्स लुक एट सम कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो इंग्लिश में बात करते हुए जो है हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, वर्ड को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो किसी भी वर्ड को हम, वर्ड या फ्रेज को शॉर्ट करने के लिए उसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्शन को लिखते वक्त, ठीक है, लिखते वक्त एक हम यूज करते हैं, उसको कहते हैं अपोस्ट्रोफी कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो साइन है ना यहाँ पे, अपोस्ट्रोफी। ठीक है, तो आई एम अ टीचर, ये हमने पूरा कह दिया। ठीक है, बट मैं जब कह रहा हूँ आई एम अ टीचर, ठीक है, मैं एक टीचर हूं, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, एम को पूरा नहीं कह रहे हम, बस यहाँ पे आई एम अ टीचर, वी आर टीचर्स। ठीक है, हम सब टीचर्स है, वी आर टीचर्स। तो यहाँ पे हम अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? वी आर टीचर्स। ठीक है, इसको प्रोनाउंस करने का तरीका सुन लीजिए, वी आर टीचर। तो यहाँ पे मैं पूरी तरह आर को प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, बस उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वी के साथ। ठीक है, तो जनरली बात करते वक्त ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, दे आर स्टूडेंट्स। ठीक है, दे आर अ स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, सॉरी नॉट अ, दे आर स्टूडेंट्स। ठीक है, ही इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, इट्स अ बुक। ठीक है, तो इट्स यानी कि इट इज, ठीक है, शी इज अ टीचर। सो दिस इज हाउ वी डू द कॉन्ट्रैक्शन। सो एम के साथ यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एम करेंगे, ठीक है, ये आर के साथ क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी आर ई, ठीक है, और इज के लिए हम क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस करेंगे। तो उसके पहले जो भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसको यहाँ पे हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट प्रोनाउंस हम जोड़ देंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी फॉर्म द कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, नाउ
तो ये हमारा एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बुक जो मैंने बात की थी अभी अभी, उससे मैंने ये क्लिप लिया है, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव पार्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस हम किस तरह फॉर्म करते हैं। पॉजिटिव, आज हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। आगे के लेक्चर्स में हम किस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करना है, किस तरह क्वेश्चंस फॉर्म करना है, तो हम किसी भी टेंस के बारे में जब देखेंगे उसको तीन एंगल्स के जरिए देखेंगे। ठीक है, इस बेसिक कोर्स में हम तीन एंगल्स के जरिए देखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है, कैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। तो किसी भी टेंस को हम इन तीन एंगल्स के जरिए देखते रहेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका वो पर्टिकुलर टेंस के बारे में नॉलेज जो है वो मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या कर रहे हैं हम, ये वाला जो कॉलम है ये हमें सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो हमने अभी अभी देखा है, ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ये आई, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है, ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, फिर वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ठीक है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू क्या हो गया सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी और प्लूरल भी, ठीक है, एस और पी लिख रहा हूं मैं बस, ठीक है, सिंगुलर यानी कि एक, प्लूरल यानी कि बहुत, दे यानी कि क्या, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए, ठीक है, तीसरा हिस्सा, ठीक है, जो हमारे सामने नहीं है अभी। तो आई के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एम इस्तेमाल करते हैं। तो जो मैंने अभी अभी बताया उसको फिर से मैं यहाँ पे दोहरा रहा हूँ, तो ये रेपिटेशन से आपके माइंड में ये बात हमेशा के लिए इंशाल्लाह ताला फिक्स रहेगी। ही शी इट, इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वी यू दे, इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, आर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वी आर। और यहाँ पे ये साइड में जो है सब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, कॉन्ट्रैक्टेड जो जोड़ के बोला गया, आई एम, हीज, शीज, इट्स, वी आर, योर, दे आर, ये शॉर्ट फॉर्म्स है, ठीक है। तो आई के साथ एम, ये हमें याद रखने के लिए बहुत आसान है। ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, उसके साथ इज इस्तेमाल होगा, और बाकी क्या, आर इस्तेमाल करेंगे। वी यू दे क्या इस्तेमाल करेंगे, हमारा टू बी का फॉर्म आर। तो हमने आज सब्जेक्ट प्रोनाउंस देखा, और उसके साथ साथ लिंकिंग वर्ब्स क्या क्या है, एम इज आर, इसके बारे में देखा, ठीक है। नाउ लेट्स अगेन लुक एट द सेंटेंसेस, ठीक है, फिर से हम सेंटेंसेस को देखेंगे जो हमने एक्सरसाइज नंबर 1 में देखा था, सेंटेंसेस अलग अलग। अब इस नॉलेज के साथ हम इन सेंटेंसेस को देखेंगे कि जो अभी अभी हमने ग्रामर सीखा है उस नॉलेज के साथ हम इन सेंटेंसेस को देखेंगे। तो फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में क्या कहेंगे, आई के साथ लिंकिंग वर्ब क्या है, ये एम। आज ये दो वर्ड्स के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, बाद में आगे हम जाके कॉम्प्लीमेंट वगैरह के बारे में सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। वी आर स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस, सब्जेक्ट, एंड दिस इज व्हाट, लिंकिंग वर्ब, ठीक है, तो सिर्फ वर्ब भी कहेंगे तो भी कोई बात नहीं। सेकेंड पर्सन, ठीक है, जो मुखातब है जिससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो यू आर सेकेंड पर्सन राइट नाउ, सो यू आर स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यू आर स्टूडेंट्स, तुम सब स्टूडेंट्स हो। और अगर मैं सिंगल की बात करना चाहूंगा, सिंगुलर की बात करना चाहूंगा, तो मैं क्या कहूंगा, यू आर अ डॉक्टर, यू आर डॉक्टर्स, ठीक है, बहुत सारे लोगों के बारे में कहना चाहूंगा, ठीक है। नाउ थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए क्या कहेंगे, ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, फर्स्ट टू वर्ड्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, ठीक है, फीमेल, फेमिनिन। ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही इज, शी इज, ठीक है। ऑब्जर्व कीजिए, दे के साथ क्या इस्तेमाल हो रहा है, आर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, प्लूरल है, दे आर डॉक्टर्स। तो अगर ह्यूमन है तो बेसिकली मेल और फीमेल के लिए ही और शी इस्तेमाल करेंगे, और उसका प्लूरल के लिए भी दे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब थिंक है या फिर एनिमल है, तो उसके लिए हम सिंगुलर रहेगा तो इट इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि इट इज अ पेन, इट इज अ डॉग, इट इज अ कैट, इट इज अ लायन, ठीक है, तो ये इट। और अगर प्लूरल की बात करनी है तो उसमें भी हम दे ही इस्तेमाल करेंगे, दे आर पेन्स, दे आर डॉग्स, दे आर कैट्स, दे आर लायंस, ठीक है, इस तरह, तो दे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज आपको करना है, तो फर्स्ट वन लेट्स जस्ट look at it over here. So first, mm,
उस यहाँ पे आपने बस सरनेम लिखा है, बागवान जी, जो भी है। प्लीज फर्स्ट वन कीजिए, व्हाट विल यू पुट ओवर देयर इन द फिल इन द ब्लैंक्स, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। आई डैश अ सोल्जर। आर यू देयर? नौशाद, कैन यू आंसर प्लीज? फर्स्ट वन। चलिए, यहाँ I पे क्या am a क्या है? soldier. ओके, आई एम अ सोल्जर। प्लीज पुट योर नेम ओवर हियर सो दैट आई कैन कॉल यू आउट ओवर हियर। नौशाद, Abdul नंबर Qadir. टू। नौशाद, प्लीज डू नंबर टू। यू। Okay, Nishad, please do number two. Please unmute yourself and answer me. Okay, Or a painter. you are a painter. Siddiqui, please do number three. She is a cashier. She is a cashier. Okay. Next, Karishma, please do it. We are barbers. We are barbers. Okay, fine. आप ही कीजिए last one, Karishma. They are waiters. They are waiters. Okay, fine. नेक्स्ट, अब हम तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज था, इससे और हम कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइजेस रहेंगे आगे, बट सिंस दिस इज द फर्स्ट लेक्चर सो आई हैव जस्ट केप्ट दिस सिंपल एक्सरसाइज ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद सेंटेंस बिल्डिंग। ठीक है, तो सेंटेंस बिल्डिंग ये हमारा एक्सरसाइज कंटिन्यूसली हमारे पूरे कोर्स के दौरान रहेगा। सेंटेंसेस अगर आप सही से बना पाए तो इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली विल बी एबल टू फॉर्म अ डायलॉग वेरी इजीली। ठीक है, फाइन। तो सब में पहला सेंटेंस क्या होगा? हम खुद के बारे में बात करेंगे, आपके खुद के बारे में इंफॉर्मेशन, या किसी फ्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन, या फिर फैमिली मेंबर के बारे में इंफॉर्मेशन, और आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी इस्तेमाल करना है। ठीक है, माई नेम। ठीक है, माई नेम, मेरा नाम इज तौसीफ। इज, ठीक है, हम अभी लिंकिंग वर्ब क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? इज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, माई नेम इज तौसीफ। ठीक है, आई, अब मैं क्या कहूंगा? आई एम अ टीचर। ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। तो दिस इज हाउ यू विल बी इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। देन अगर आपको दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आप और मैं बात कर रहे हैं और हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ही या शी, तो फॉर एग्जांपल मैं किसी दोस्त के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ही, दिस इज जॉन, ही इज एन इंजीनियर। ही इज एन इंजीनियर। तो हमारे जो भी हम ग्रामर सीख रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे हम। ठीक है, तो हमने ये सब्जेक्ट प्रोनाउन देखा, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, फिर उसके बाद यहाँ पे इज आ रहा है हमारा। ठीक है, सो ही इज एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर है। ठीक है, माई फ्रेंड्स नेम। ठीक है, मेरा फ्रेंड का नाम क्या है? माई फ्रेंड्स नेम इज जॉन, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, माई फ्रेंड्स नेम इज जॉन, ही इज अ टीचर, ही इज एन इंजीनियर, ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, इस तरह शी इज अ टीचर, इस तरह जो भी आपको बोलना है, इंट्रोड्यूसिंग अ फ्रेंड। ठीक है, और फिर आपको अगर फैमिली मेंबर, जो आपके फैमिली मेंबर है, तो आप उसके लिए कहेंगे फॉर एग्जाम्पल ब्रदर, भाई। ठीक है, माई ब्रदर्स नेम इज जुबैर, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, माई सिस्टर्स नेम इज तस्नीम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको अगर इंट्रोड्यूस करना है आपके फैमिली को, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहे हैं। ठीक है, अगर फैमिली मेंबर के बारे में कहना है तो मदर्स, फादर्स, अपोस्ट्रोफी एस है। ठीक है, ये राइटिंग में हमें इंपॉर्टेंट होता है अपोस्ट्रोफी एस, ब्रदर्स। ऑल्दो वी आर नॉट लुकिंग एट, मतलब राइटिंग स्किल्स के ऊपर ये कोर्स फोकस नहीं है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो माय मदर्स नेम, माय फादर्स नेम, माय ब्रदर्स नेम, माय सिस्टर्स नेम, सो ऑन एंड सो, और वो क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, so this is a sentence building वाला exercise. So right now since we have less time, this is a very easy exercise. From tomorrow onwards we'll be doing in detail this sentence building वाला exercise, but this you can do it on your own as well. ठीक है, for example अभी चलिए कोई एक वॉलंटियर कीजिए और आपके खुद के बारे में बोलिए, आपके दोस्त के बारे में बोलिए, और फैमिली मेंबर के बारे में बोलिए। एनी वन कैन वॉलंटियर, एनी वन पर्सन, जस्ट एक को बोलना है। या शैल आई कॉल आउट नेम? चलिए निशाद,
इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल अबाउट योर फ्रेंड, यही 2 सेंटेंसेस बोलना है बस, बाकी कुछ नहीं बोलना है आपको, ठीक है। My name is निशात। Nishat. My हम्म। friend name is Mehri. हम्म। नहीं नहीं, My आप friend name आई is आई एम अ, आपके बारे में भी बोलिए, हाँ आई एम। I am a student. ओके। ठीक है, My माय फ्रेंड्स नेम बोलिए, माय फ्रेंड्स नेम। my friend name is Mehri. ओके। वो क्या करते हैं, ही। She is a student. ओके। फिर उसके बाद फैमिली मेंबर, माय मदर्स नेम बोलिए सिर्फ, चलिए। माय मदर्स नेम My इज। mother's name is Parveen. ओके। एंड ही, शी इज व्हाट, क्या काम Oh, करती है? शी इज अ हाउसवाइफ बोलिए, जो भी बोलना है, ठीक है। housewife. शी इज अ हाउसवाइफ, ओके फाइन। सो इस तरह ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज था, इसलिए मैंने सबके से मतलब आई डेंट टेक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू गिव द आंसर्स। Inshallah, from tomorrow onwards, will every one of you will be answering this. Okay, this particular exercise. Okay, so let's do dialogue number 1. ठीक है, तो डायलॉग नंबर 1 में बेसिक कॉन्वर्जेशन है, तो आप जो है आपका खुद का नाम कैसे बोलना है, स्पेल कैसे करना है, फैमिली नेम के बारे में कैसे बात करना है, ठीक है। सो वो हियर इन दिस 2 डायलॉग, यहाँ पे आपको वॉलंटियर करना होगा। सो करिश्मा एंड, चलिए, निशात, चलिए आप ही कीजिए, करिश्मा और निशात आप। करिश्मा विल बी टीचर और निशात जो है वो स्टूडेंट रहेगी। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा खुद से कुछ नहीं बोलना है, बस जो बताया गया है डायलॉग स्क्रीन पे उसको बस पढ़ना है आप, ठीक है। सो जस्ट डू इट क्विकली, रीड दैट, करिश्मा एंड निशात। Yes, sir. Good evening. My name is Karishma. Nice to meet you. Good evening, sir. Nice to meet you too. What is your name? My name is Nishat. Nishad? Yes. How do you spell your name? स्पेलिंग बोलिए आपके नाम का। N Nishat. NishAT, right? Yes, that's right. What is your family name? My family name is आपके Kazi. How do you spell that? Kazi. Thank you. You're welcome. ओके, थैंक यू फॉर वॉलंटियरिंग। सो ये बहुत ही बेसिक डायलॉग है, ठीक है। तो आपका खुद का नाम कैसे बोलना है, फैमिली नेम कैसे बोलना है, आपके नाम को कैसे बताना है, ठीक है। तो हमने जो आज डायलॉग सीखा, ठीक है, हमने जो कंसेप्ट सीखा, ठीक है, माय नेम, फिर उसके बाद इज, ठीक है, माय नेम इज तौसिफ फॉर एग्जांपल, ठीक है, नाइस टू मीट यू, ये इनिशियल इसको इसको ग्रीटिंग्स कहेंगे, ठीक है, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड आफ्टरनून, जो भी है, ठीक है, और नाइस टू मीट यू, ये दीज आर इनिशियल ग्रीटिंग्स, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, अब ये क्वेश्चंस कैसे फॉर्म हो रहे हैं वगैरह, ये सब चीजें हम मतलब लेसन नंबर 30 के आगे शायद 25 to 30 में देखेंगे इंशाल्लाह ताला, कि कैसे हम क्वेश्चंस फॉर्म करने वाले। बट राइट नाउ जस्ट इंट्यूटिवली आप समझ लीजिए, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। माय नेम इज तस्नीम, ठीक है, तस्नीम, यस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम हमारा इंटोनेशन अगर, जैसे कि मैम ने बहुत अच्छे से इंटोनेशन किया, ठीक है, तो उससे पता चलता है कि अरे हाँ, ये सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तस्नीम, ऐसे, ठीक है। सो द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, कि आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाउ डू यू स्पेल योर नेम, तुम तुम्हारा नाम कैसे स्पेल करते हो, ठीक है, हाउ डू यू स्पेल योर नेम, विल बी लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर कि ये कैसे आ गया, ठीक है। दीज 3 वर्ड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो कि हमारा, मैं इसको बाद में हम डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। और ये 3 वर्ड्स के ऊपर आपकी पकड़ आ गई, ठीक है, तो आपका बहुत सारा जो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ डू यू स्पेल योर नेम, तुम तुम्हारे नाम को कैसे स्पेल करते हो, तो स्पेल किया है यहाँ पे, ठीक है, ये राइट, यस दैट्स राइट। व्हाट इज योर फैमिली नेम, तुम्हारे फैमिली का नाम क्या है, ठीक है, माय फैमिली नेम इज, ठीक है, इज इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अभी इज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, बस आप नेचुरली समझ लीजिए, अगर मैं और डिटेल्स में जाऊंगा तो आप
अननेसेसरी आपको लगेगा कि अरे कितना डिटेल्स बता रहे करके, ठीक है। सो ठीक है, मैं बता ही देता हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। ठीक है, इट कहते हैं बेसिकली माय फैमिली नेम। ये क्या हो गया, एसेंस में क्या है, उसके एसेंस में क्या है, इट है। ठीक है, और हमने क्या देखा है, ही शी इट के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये माय फैमिली नेम एसेंस में उसके असली में क्या है, अगर उसको हम प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे तो किससे रिप्लेस करेंगे, इट से रिप्लेस करेंगे, इस वजह से यहाँ पे इज इस्तेमाल किया गया। एनीवे मैंने बहुत डीप में बता दिया, समझ में आया तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। हाउ डू यू स्पेल दैट, तुम कैसे स्पेल करते हो, ठीक है, ये XYZ। थैंक यू, यू आर वेलकम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर वेलकम, हम जो बार बार कहते रहते हैं यू आर वेलकम, बट हम समझते नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं करके। ठीक है, जब ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो आपको बात करने में भी बहुत मजा आता है। ठीक है, और किसी भी चीज में आपको मजा आने लगेगा, उस चीज में आप एक्सेल करेंगे। ठीक है, तो यू आर वेलकम। ठीक है, तो तुम्हारा शुक्रिया। Okay, let's quickly do the matching exercise over here. सो इसमें आपको करना क्या है, ठीक है, तो जो भी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, तो ये किससे मैच करेगा, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया होगा या फिर कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, तो उसके लिए क्या कहा गया होगा, अगर क्वेश्चन होगा तो क्या कहा गया होगा, या फिर अगर स्टेटमेंट होगा तो उसका क्या आंसर होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, मैचिंग एक्सरसाइज कहते हैं इसको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ नौशाद। सो यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है, इसको आप किसके साथ मैच करेंगे, गुड बाय के, अगर सामने वाला हेलो कह रहा है तो आप गुड बाय कहेंगे या हाय कहेंगे, ऑब्वियसली हाय कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट निशाद। Nice to meet you too. हाँ, सेकंड वन, नेक्स्ट वन, सना। ओके, सिद्दीकी। Yes, that's right. ओके, नेक्स्ट करिश्मा। What is your name? हाँ, तो अभी यहाँ पे माय नेम इज तस्नीम का है, तो इसको क्या क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो व्हाट इज योर नेम का होगा। तो यहाँ पे अगर फैमिली नेम कहते तो ये ऐसा नहीं कहते, राइट, तो वो फैमिली नेम होता है वहाँ पे। ठीक है, सो व्हाट इज योर नेम कहा गया होगा, सामने वाले ने ये कहा होगा, तब जाके ये आपने आंसर दिया। सो दिस लिंकिंग एज वेल, कि सामने वाला क्या कह रहा है और हम क्या कहेंगे, उसको उसको क्या आंसर देंगे, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज वेल। नेक्स्ट निशाद। ओके What फाइन, is your नेक्स्ट। name? व्हाट इज योर नेम, नहीं नहीं, यहाँ पे थर्ड है ये, हाउ डू यू स्पेल दैट कहेंगे। ठीक है, तुम हाँ, उसको कैसे स्पेलिंग करते हो, ठीक है, हाउ डू यू स्पेल दैट, तब जाके ये आंसर मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसको ऐसे स्पेल करते हैं अगर। ठीक है, और थैंक यू के लिए हम क्या कहेंगे, यू आर वेलकम कहेंगे, ना ही कोई स्पेलिंग नहीं देंगे। ठीक है, तो थैंक यू के लिए ये वेलकम कहेंगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट, ऑर्डरिंग करना है, तो आपको सेंटेंसेस को सही ऑर्डर में लगाना है यहाँ पे। तो ये जब ऑर्डरिंग आप इंट्यूटिवली जब सीख पाएंगे ना, तो यहाँ पे मैं इंट्यूशन के ऊपर मतलब आपको ये करता हूँ, मतलब यहाँ पे आपको ग्रामर नहीं सोचना है, आपको बस इंट्यूशन के बारे में, आपको क्या लगता है सही, क्या क्या सही ऑर्डर होना चाहिए। जब ये इंट्यूशन बिल्ड होगा आपका, तो इंशाल्लाह ताला अल्फाज भी फ्लुएंटली आपकी जबान से निकलेंगे। तो फर्स्ट वन, नेक्स्ट सना, अच्छा सिद्दीकी, चलिए ये आप फर्स्ट टू कीजिए। व्हाट विल बी द ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर, इज योर व्हाट नेम, सही ऑर्डर क्या होगा। What is your name? और ये सेकंड वाले का, सेकंड वाले में क्या होगा सही ऑर्डर। How do you spell your name? वेरी गुड, हाउ डू यू स्पेल योर Name. नेम। ठीक है, नेक्स्ट करिश्मा प्लीज डू दीज टू, नेक्स्ट टू, करिश्मा प्लीज डू इट। What is your family name यस, and नेक्स्ट, how do you spell that? वेरी गुड, एंड लास्ट थ्री, चलिए निशात आप कीजिए। yes, that's right. My ओके, family name is Kazi. You're ओके, welcome.
वेरी गुड, फाइन। अब ये जो डिस्कस वाला टैब है, ठीक है, जब हमारा फाइनल बैच बनेगा इंशाल्लाह ताला, और जब मैं पेयर्स बनाऊंगा, आई बी मेकिंग पेयर्स जैसे कि मैंने कहा था, ठीक है, तो ये आपको मतलब विल बी एक्सचेंजिंग नंबर्स, फीमेल्स का फीमेल्स के साथ, मेल्स का मेल्स के साथ नंबर्स एक्सचेंज होंगे, और फिर उसमें आपको बात करना है एक दूसरे से, ठीक है। तो आई विल बी फॉर्मिंग पेयर्स एंड यू विल हैव टू डिस्कस दिस विद योर पार्टनर, जो भी पार्टनर में बनाऊंगा, ठीक है। सो दिस विल बी वन ऑफ द एक्सरसाइज विच यू हैव टू डू एट होम, ठीक है। ओके, वोकेबलरी बहुत ही बेसिक वर्ड लिस्ट है, तो इस तरह मैं वोकेबलरी जो है हर दिन देते रहूंगा। तो यहाँ पे तो बहुत ही बेसिक वोकेबलरी दिया हूँ, आज फर्स्ट लेक्चर है इस वजह से, तो बेसिक वर्ड्स है कुछ, ठीक है। यू हैव टू गो थ्रू दिस वर्ड्स, और यहाँ पे उसका मीनिंग भी दिया है, ठीक है। सो यू हैव टू रीड दिस पीडीएफ एज वेल। डोंट वरी, दिस पीडीएफ विल बी अवेलेबल टू यू वाया गूगल क्लासरूम। तो गूगल क्लासरूम में मैं ये सब अपलोड करूंगा, ये लेक्चर भी अपलोड करूंगा, और इसका पीडीएफ भी मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आई विल बी अपलोडिंग द पीडीएफ एज वेल इन द गूगल क्लासरूम, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक वर्ड्स ओवर हियर। जो भी मैं वोकेबलरी देता हूँ उसको आपको मतलब खुद पढ़ना भी है, ठीक है, और इसको आपको आपकी नोटबुक में लिख के निकालना है, ठीक है। तो लिखने के बाद उसका आपको जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल है, उर्दू में कंफर्टेबल है, या फिर मराठी में कंफर्टेबल है, जो भी लैंग्वेज आपका कंफर्टेबल है, अगर आपको ये इंग्लिश वाले मीनिंग्स जो मैंने यहाँ पे दिए हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू। आपके तरफ से मेहनत ये आनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल आपको गुड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप इसका वर्ड जाके डिक्शनरी में ढूंढेंगे, ठीक है, एंड यू विल राइट डाउन द मीनिंग, ठीक है। तो जो भी आपका जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, ठीक है, हिंदी, उर्दू, या फिर मराठी, या फिर जो भी लैंग्वेज, ठीक है। एनीवे, सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑल ओवर मतलब इंडिया से लोग हैं, इसी वजह से। ओके, फाइन। कुछ और वोकेबलरी रिलेटेड टू कलर्स, ठीक है, वेरी वेरी बेसिक वोकेबलरी, ओके। नाउ नेक्स्ट, मैं एवरीडे जो है वो दो हदीस डिस्कस करता हूँ, सो दैट इस इसका मकसद ये होता है कि मतलब हम जो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी चीज देखते हैं, उसके साथ साथ हमारे अंदर एक स्पिरिचुअलिटी भी आ जाए, ठीक है। उस वजह से मैं ये डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। तो दिस इज रिगार्डिंग फेथ, ठीक है। तो गुड इंटेंशन, ठीक है, हमारे इंटेंशंस, एक्शंस डिपेंड ऑन इंटेंशंस, तो हमारी नीयत के ऊपर जो है वो एक्शंस डिपेंड करता है, ठीक है। सो वी हैव टू मेक आवर इंटेंशंस प्योर, तो एक्शंस हमारे ऑटोमेटिकली प्योर बन जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट आर द फाइव पिलर, नेक्स्ट पिलर्स ऑफ इस्लाम, ठीक है, फाइव, इस्लाम इज बेस्ड ऑन फाइव पिलर्स, सॉरी, फाइव पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। व्हाट आर दोस फाइव पिलर्स। तो सब में पहले शहादत देना, टेस्टिमनी दैट देयर इज नो ट्रू गॉड एक्सेप्ट अल्लाह एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हिज मैसेंजर, ठीक है, नंबर वन। देन परफॉर्मिंग प्रेयर्स, सलात, फाइव टाइम्स प्रेयर। पेमेंट ऑफ जक़ात, ठीक है, पेमेंट, पेमेंट यानी कि क्या, देना, ठीक है। परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग यानी कि क्या, परफॉर्म करना, अदा करना, ठीक है। टेस्टिमोनी यानी कि क्या, देखिए यहाँ पे आपको वोकेबलरी भी बहुत सारे मिलते हैं। टेस्टिमोनी यानी कि शहादत देना, ठीक है। पिलर्स यानी कि क्या, सुतून, ठीक है, फाइव सुतून, ठीक है। परफॉर्मिंग, मैसेंजर यानी कि क्या, रसूल, ठीक है, मैसेंजर यानी कि क्या, रसूल। ट्रू यानी कि देर इज, कोई सच्चा भगवान नहीं है सिवाय अल्लाह के, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी कि क्या, सिवाय। एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज मैसेंजर। परफॉर्मिंग प्रेयर्स, नमाज को अदा करना। पेमेंट ऑफ जक़ात, पेमेंट यानी देना, ठीक है, जक़ात का अदा करना। हज टू द हाउस ऑफ अल्लाह, ठीक है, तो हज करना वंस इन अ लाइफ टाइम। एंड फास्टिंग, फास्टिंग यानी कि क्या, रोजा रखना। सौम, इसको अरेबिक में वर्ड है सौम, हम कहते हैं रोजा कहते हैं, ठीक है। तो रोजा रखना, फास्टिंग इन द मंथ ऑफ रमजान। सो दिस इज रिगार्डिंग द हदीस फॉर टुडे, ओके। होमवर्क, आपको होमवर्क क्या करना है, ठीक है। एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, इसका मैं पीडीएफ जो है मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड करूंगा। आई विल बी अपलोडिंग द पीडीएफ इन द गूगल क्लासरूम, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये पीडीएफ को जाके डाउनलोड करना है, ठीक है, फ्रॉम यूनिट नंबर वन, ठीक है, जहाँ पे आपको एम इज आर क्या है, ठीक है, इसके बारे में वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और आपको एक्सरसाइज 1.1 से लेके एक्सरसाइज 1.5 तक पूरा करना है, ठीक है। तो ये मैंने जैसे कि कहा है कि दो पेजेस वाले ही चैप्टर है, एक पेज और दूसरा पेज। तो फर्स्ट पेज पे आपको थियरी मिलेगा, ठीक है, देयर विल बी थियरी ऑन फर्स्ट पेज, एंड देन द नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइजेस रहेगा। तो बहुत ही अच्छे से ये डिजाइंड है ये बुक, ठीक है। एंड देन
जो भी ये हमने कॉन्वर्जेशन सीखा, इसको आपको अभी के लिए, ये हफ्ते के लिए आप जो है वो खुद मिरर के सामने खड़े रह के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। ओके, सो आज के लिए जो है मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ हमारा लेक्चर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।